بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے جماعت نحم کی اردو کی کتاب کی ایک غزل لے کر آئے ہیں، جس کے شاعر ہیں خواجہ حیدر علی آتش۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے تعارف شاعر ہے۔ خواجہ حیدر علی آتش 1764 میں پیدا ہوئے اور 1847 میں وفات ہوئی۔ خواجہ حیدر علی آتش علی بخش کے بیٹے تھے۔ دلی ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ نواب شجاع الدولہ کے عہد میں دلی سے فیض آباد میں آ رہے۔ کم سنی میں والد کا انتقال ہو گیا، کوئی سرپرست نہ تھا، مالی حالت بہت خراب تھی، اس لیے نواب مرزا احمد تقی کی ملازمت اختیار کر لی۔ آپ ان کے ہمراہ لکھنؤ آ گئے، شاعری میں مصحفی کے شاگرد بن گئے۔ بادشاہوں کے دربار میں نہیں گئے، نہ کسی کا کوئی قصیدہ لکھا، تاہم بادشاہ ارزراہ قدردانی 80 روپے ماہانہ انہیں پیش کرتا تھا۔ نہایت منکسر المزاج اور خلیق انسان تھے، یعنی عاجز۔ منکسر المزاج کے معنی جو تکبر نہ کرتا، اور خلیق کا مطلب ملنسار، سب سے ملنے والے۔ ان کی شاعری میں زبان کا لطف اور الفاظ کی چاشنی ہے۔ غزل ہے آپ کے سامنے۔ پہلا شعر غزل کا: دہن پہ ہیں ان کے گماں کیسے کیسے، کلام آتے ہیں درمیاں کیسے کیسے۔ مشکل الفاظ ہیں۔ دہن منہ، یہاں زبان مراد ہے۔ کلام بات، شعر۔ اور گمان شبہ خیال، کیسے کیسے کس طرح۔ حوالہ شاعر ہے۔ یہ شعر ہماری اردو کی درسی کتاب کی غزل سے لیا گیا ہے، جس کے شاعر خواجہ حیدر علی آتش ہیں۔ تشریح ہے۔ غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں۔ آتش اپنی غزل کے اس شعر میں فرماتے ہیں کہ زمانے کی گردش، وقت کے اتار چڑھاؤ اور زمانے کی نرنگیوں نے عجب منظر دکھائے۔ کہیں خوش گمانیاں، کہیں بدگمانیاں، ساتھ ساتھ چلنے والے کیا کیا سوچیں اور کیا کیا خیالات لے کر چل رہے ہیں، پتہ نہیں چلتا۔ جب وہ بولتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، وہ لبوں سے کس طرح ادا ہو رہا ہے۔ ان کی لب کشائی ہی ظاہر کرتی ہے کہ ان کے اندر کس قسم کا آتش فشاں برپا ہے۔ زبان سے نکلنے والے الفاظ ان کی سوچوں کا صحیح پتہ دیتے ہیں۔ شعر نمبر 2 ہے اس غزل کا: زمینیں چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، زمینیں چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ مشکل الفاظ ہیں۔ زمین چمن، وہ جگہ جہاں سبزہ اور پھول وغیرہ اگے ہوں۔ گلزار، پھلواری، گل، پھول، گل کھلانا، کار عجیب سر انجام دینا، یعنی انوکھے کام کرنا۔ حوالہ شاعر ہے کہ یہ شعر ہماری اردو کی درسی کتاب کی غزل سے لیا گیا ہے، جس کے شاعر خواجہ حیدر علی آتش ہیں۔ تشریح ہے اس شعر کی۔ شاعر اپنی غزل کے اس شعر میں وقت کے تغیر و تبدیلی کی بات کر رہے ہیں۔ وقت اور زمانے کی گردشیں تبدیل ہوتی ہیں تو ہر جگہ تبدیلی کے اثرات رونما ہوتے ہیں۔ وہ تبدیلی ہر شے پر نمایاں نظر آتی ہے۔ وقت، زمانہ فقیر کو بادشاہ اور بادشاہ کو فقیر بنا دیتے ہیں۔ نئے غنچے کھلتے ہیں اور نئی کونپلیں پھوٹتی ہیں اور ان سے رنگ برنگ پھول بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ دن رات، صبح شام، ان تمام اوقات میں زمانہ نئے نئے روپ و رنگ میں آتا ہے۔ ان تمام روزمرہ تبدیلیوں کو آتش حیرت سے تکتے ہیں اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ نہ جانے یہ تبدیلیاں کیسے رونما ہوتی ہیں۔ شعر نمبر 3 ہے اس غزل کا: نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ مشکل الفاظ ہیں۔ گورے سکندر، سکندر بادشاہ کی قبر۔ قبر دارا، ایک بہت بڑا حاکم جس کا نام دارا تھا، اس کی قبر
नामियों मशहूर लोग, निशां तस्करे बातें जिक्र। हवाला शायर गुज़िश्ता वाला और तशरीह है इस शेर की। इस शेर में ख्वाजा हैदर अली आतिश दुनिया की बेसबाती का जिक्र कर रहे हैं। बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े ओहदा रखने वाले, बड़े बड़े हुक्मरान सब आलम से मिट गए, दुनिया से ख़त्म हो गए और मिट भी जाएंगे, यानी आने वाले वक्तों में भी ऐसे ही होगा। इस शेर में हैदर अली आतिश मिसाल देते हुए बताते हैं कि सिकंदर आज़म को दुनिया का फातेह कहा जाता है, पूरी दुनिया का बादशाह कहलाने का फख्र करता है। आज उस अजीमुशान बादशाह की कब्र का कोई नामो निशान बाकी नहीं है। इसी तरह ईरान के इलाके का हुक्मरान दारा बड़ी ताकत वाला था और रोब व दबदबा था, उसकी कब्र भी ढूंढने से नहीं मिलती। दुनिया के तमाम नामवर लोग मर चले हैं, अब उनका नामो निशान भी नहीं रहा। फ़कत तारीख के अलावा सब फ़ानी हो चुका है, यानी तारीख की कुतुब में तो उनके तस्करे मिलते हैं, लेकिन बाकी वो कहाँ के थे, कहाँ गए, कुछ पता नहीं है। शेर नंबर 4 है इस गज़ल का। गम गुस्सा वो रंज वो अंदोह वो हिरमा, हमारे भी हैं मेहरबान कैसे कैसे। मुश्किल अल्फाज हैं। अंदोह मलाल रंज, हिरमा दुख दर्द नाउमीदी महरूमी, मेहरबान मोहब्बत करने वाला दोस्त यार। हवाला शायर गुज़िश्ता अशार का है। तशरीह इस शेर की, हैदर अली आतिश फरमाते हैं कि जज्बात के मुख्तलिफ पहलुओं को लोगों से तशबीह देते हुए लिखते हैं कि हमारे दोस्त व अहबाब तो हमसे किनारा कशी इख्तियार कर चुके हैं, मगर हर रोज़ दुख तकलीफ गम दर्द रंजो अलम मुसीबत मुश्किलात गुस्सा और खुशी, ये तमाम जज्बात हम पर मेहरबान होते हैं और हमारी तन्हाई को दूर करने के लिए हमसे मिलने आते हैं। ये तमाम जज्बात व एहसासात मेरे दोस्त व अकारिब हैं, जो मेरे साथ जो मेरा 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 साथ देते हैं और मुझ पर मेहरबानियाँ करते हैं, मुझे अकेला होने नहीं देते। यानी शायर इसमें किस्म का गिला करते हैं कि इंसानों से तो ये गम दुख दर्द और तकलीफ अच्छे हैं, जो कम अज़ कम इंसान के साथ तो होते हैं तन्हाई में, उसका साथ तो देते हैं। शेर नंबर 5 है इस गज़ल का। करे जिस कदर शुक्र नेमत वो कम है, मज़े लूटती है ज़बां कैसे कैसे। हवाला शायर गुज़िश्ता वाला। तशरीह इस शेर की। इस शेर में ख्वाजा हैदर अली आतिश, जो खुद भी दरवेश सिफत इंसान और कलंदराना अंदाज इख्तियार किए हुए थे, यही सिफात इस शेर में नज़र आ रही हैं। वो सब्र व तहम्मुल, तवक्कल और कनात पसंद थे। इस शेर के ज़रिए वो लोगों को सब्र शुक्र कनात पसंदी करने का पैगाम देते हुए कहते हैं कि अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए, और हम बंदे अल्लाह की नेमतों का जितना भी शुक्र अदा करें कम है। अब सिर्फ अल्लाह की एक अदना नेमत ज़बान ही को देख लो, जिस जो तरह तरह के जायके चखती है, यानी अल्लाह की हज़ारों अक़साम के जायकेदार खुराक और नेमतें जो हम खाते हैं, हर चीज़ का दूसरी चीज़ से जायका मुनफरिद और अलग है, हमारी ज़बान चखती है। लिहाजा हमें अल्लाह की इन तमाम नेमतों पर उसका शुक्र अदा करना चाहिए। ये आखिरी शेर था इस गज़ल का, जो आपके सामने हमने रख दिया। अब ये उसके कुछ मुख्तसर सवालात हैं। सवाल है कि इस नज़म में इस्तेमाल होने वाले मुहावरात लिखिए। जवाब है, इस गज़ल में दर्ज झेल मुहावरात इस्तेमाल हुए हैं। गुल खिलाना, रंग बदलना, मिट जाना, मज़े लूटना। सवाल है, इस गज़ल में सनत तकरार के लिए कौन से लफ्ज़ आए हैं। जवाब है, इस गज़ल में सनत तकरार के लिए कैसे कैसे इस्तेमाल हुआ है। इस गज़ल की काफ़िए और रदीफ के अल्फाज कौन से हैं। जवाब है, इस गज़ल के काफ़िए और रदीफ दर्ज झेल हैं। गुमा, दरमिया, आसमां, निशां, मेहरबान, ज़बां। इस गज़ल में रदीफ दर्ज झेल है। कैसे कैसे, ये इस गज़ल की रदीफ है। कसीरुल इंतखाबी सवालात हैं इस गज़ल के। लफ्ज़ आतिश के लुग़वी माना है
आग। पहले शेर में लफ्ज गुल खिलाना कवायद के एतबार से है मुहावरा। इसका जो है वो सही ऑप्शन आगे पीछे हो गए, मुहावरा है इसका। ये लफ्ज गुल खिलाना कवायद के एतबार से मुहावरा है, ये लिखा हुआ है। ये लफ्ज अंदोह के माना है गम। इसके बाद ये आखिरी एक जुज है, ग्रामर की इस्तिलाह है किनाया की तारीफ। किनाया किसे कहते हैं? इस तरह बात करने को जिसमें हकीकत बयान ना की जाए और उसके बदले इशारे में बात की जाए, अदब में किनाया कहते हैं। मतलब ये कि आप किसी आदमी को कोई या किसी भी चीज़ को कोई बात कर रहे हैं, आप इशारतन वो बात कहें, इसको अदब में किनाया कहा जाता है। अजीज़ तलबा व तालिबात, ये ख्वाजा हैदर अली आतिश की एक मुकम्मल गज़ल थी, जिसकी तशरी, मुश्किल अल्फाज और तमाम चीज़ें हमने आपके सामने रख दी। उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर इससे इस्तेफ़ादा करेंगे और दूसरों से भी शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दूसरों से भी ज़रूर शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।